Welcome to English class. Dear students, my name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 2. We are learning crafting business messages for electronic media. In our last lecture, we have learned about the 9 compositional modes for electronic media and how we can craft a message for electronic media. Let's begin with today's lecture. Social networks. Social networks, online services that help people and organizations form connection and share information, have become a major force in both internal and external business communication in recent years. In addition to Facebook, a variety of public and private social networks are used by business and professionals. They can be grouped into 3 categories. इन टुडे सोसाइटी अगर हम देखें तो लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए दे यूज डिफरेंट सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क्स फॉर शेयरिंग डेटा और अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंपनी, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में पता चले और वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाए. सबसे ज़्यादा हम फेसबुक को यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए, लेकिन फेसबुक के अलावा देयर आर डिफरेंट some other social networks के जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है and we have categorized them in 3 categories. Public general purpose networks के ऐसे नेटवर्क जो पब्लिक के लिए हैं और एक आम पर्पस के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है. पब्लिक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क, सेकेंडली ऐसे एप्स जो हैं पब्लिक के लिए लेकिन उन्हें खास किस्म के कामों में इस्तेमाल किया जाता है. और कुछ होते हैं प्राइवेट नेटवर्क्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में इनको डिटेल में देखते हैं. Public general purpose network. Facebook is the largest such network, although Google Plus is gaining membership rapidly and is attracting many companies and brands. Additionally, regionally focused networks have significant user bases in some countries, such as China's Renran and Kexicon 001. Kexin 001. अब आप देख लें कि सबसे पहले तो हमारे पास Facebook है. We do share a lot of information through Facebook because हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग Facebook को इस्तेमाल भी करते हैं and they try to find things on Facebook. अब Facebook के अलावा Google Plus is also emerging as another app that is used for such purposes. Companies and brands को अपनी publicity के लिए इस्तेमाल करती हैं. और फिर कुछ countries में अपने खास apps हैं, जैसे अगर आपको पता हो China is where Facebook is not allowed, WhatsApp is not allowed, YouTube is not allowed. They do have their own social networks. तो वहाँ पर जैसे ये 2 ऐप्स के आप उन्होंने नाम भी बता दिए हैं, Renran and Kexin 001. These 2 apps are being used, या social networks are being used in China for sharing information. तो ये वो चीज़ें हैं, like Facebook से आपको बड़ा आसानी समझ आ रहा है. Public general purpose network that everyone can access it. Public specialized network, whereas Facebook and Google Plus serve a widely variety of personal and professional needs, other networks focus on a particular function or a particular audience. The most widely known of these is LinkedIn, with its emphasis on career and sales related networking. Other networks address the needs of entrepreneurs, small business owners, specific professions, product enthusiasts and other narrower audience. Like we have discussed earlier, Facebook and Google Plus are both 2 networks के जहाँ पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और वहाँ पे हर शख्स उनको इजीली एक्सेस कर सकता है. बट जब हम स्पेशलाइज्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास देयर इज एन एग्जांपल ऑफ लिंक्डइन. लिंक्डइन एक प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट है कि जहाँ पे हर कोई जाकर अपनी प्रोफेशनल एक प्रोफाइल बनाता है, अपनी इंफॉर्मेशन देता है एंड देन ही कैन एक्सेस डिफरेंट जॉब. और लिंक्डइन पे आपको बताया जाता है कि एज पर योर एबिलिटीज या योर एजुकेशन ये वो जॉब है दैट यू कैन अचीव, या ये वो शख्स है कि जिसके साथ आपको राब्ते में रहना चाहिए. तो लिंक्डइन फेसबुक की तरह ओपनली काम नहीं करता, हर शख्स तक एक्सेस नहीं देता, बल्कि ये एक वो प्रोफेशनल तरीके से लोगों को आपस में लिंक करता है, कंपनीज को लिंक करता है, बिजनेसमैन को आपस में लिंक करता है, खास प्रोफेशंस के लोगों को आपस में लिंक करता है. एंड द थर्ड वन इज प्राइवेट नेटवर्क. सम कंपनीज हैव बिल्ट प्राइवेट सोशल नेटवर्क्स फॉर इंटरनल यूज. फॉर एग्जांपल, द डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर Lockheed Martin
created its Unity network, complete with a variety of social media applications to meet the expectation of younger employees accustomed to social media and to capture the expert knowledge of older employees nearing retirement. प्राइवेट नेटवर्क से मुराद ये है कि सम कंपनीज डू क्रिएट और डू बिल्ड देयर ओन सोशल नेटवर्क्स के जहाँ पर देयर एम्प्लॉयज कैन शेयर इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन सेव रहती है. जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है, लॉकहीड मार्टिन ने यूनिटी नेटवर्क के लिए एक ऐप बनाया. अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल आपको एक एग्जांपल दूँ दैट यू पीपल माइट नो अबाउट, कि रिफा की तरफ से आपको एक ईमेल दी जा रही है और अगर आपने कभी नोटिस किया हो व्हेन यू लॉग इन टू दैट ईमेल तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताता है कि रिफा ने ये तमाम एक सॉफ्टवेयर या ये चीज़ गूगल से ख़रीदी है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं एंड दैट यू कैन यूज़ इट. एंड नाउ रिफा भी उसको तमाम चीज़ों को जब चाहे देख सकता है. तो दिस इज़ वेयर कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स बनाए जाते हैं अपनी कंपनी की सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए. बिजनेस कम्युनिकेशन यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्क्स. अब हम बात करेंगे कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन में सोशल नेटवर्क्स को कैसे यूज कर सकते हैं. विद देयर एबिलिटी टू रीच virtually unlimited numbers of people through a variety of electronic formats, social networks are a great fit for many business communication needs. Here are some of the key applications of social networks for internal and external business communication. जब हम ये बात करते हैं कि वर्चुअली किसी के साथ कम्युनिकेशन की, तो सोशल नेटवर्क्स प्रोवाइड अस अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन communicate with a large number of people anytime. We can access them, we can share information with them, we can communicate with them about our own business. Here are some of the key applications of social networks. यहाँ पे हम अब कुछ key applications की बात करेंगे that can help us in our business or during any communication. सबसे पहले है integrating company workforces. जस्ट लाइक इन अवर पब्लिक डोमेन के जैसे हम लोगों के साथ मिलते हैं, अपनी फैमिलीज को बढ़ाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाते हैं और अपने बिजनेस में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जिनके साथ हम सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सकें. सो सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म, ये सोशल नेटवर्क्स के जहाँ पर यू कैन एक्सेस सो मेनी पीपल दैट आर रिलेटेड टू योर फील्ड, योर स्पेसिफिक डोमेन. आप उनके साथ लिंक्स बनाते हो, आप इसी तरह फिर अपनी कंपनी के जो वर्क फोर्सेस है उसको बढ़ाते जाते हो. आप लिंक्स में लोगों को लेते हो, फिर देन उन्हें टास्क असाइन करते हो, फिर उनके लिए आप अलग से कुछ डिफरेंट चीज़ें रखते हो कि जिससे वो आपके साथ जुड़े रहें. तो यूँ आप सोशल नेटवर्क्स की मदद से अपना जो एक सेटअप होता है उसे आप बढ़ाते जाते हो सोसाइटी में और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाते हो. फोस्टरिंग कोलैबोरेशन. नाउ social networks can help you in communicating with the people. ऐसे लोगों के साथ social networks आपको मिलाते हैं जो आपसे इंटरेस्ट या आपसे मिलते जुलते पर्पसेस पे काम कर रहे होते हैं और किन किन कंपनीज में वो लोग काम कर रहे हैं. तो थ्रू सोशल मीडिया यू कैन collaborate with such people, you can create your another world के जहाँ पर आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जहां आप लोग अपने बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से लेके चल सकते हैं. तो सोशल नेटवर्क पे अगर आपने कभी फेसबुक पे अगर गौर किया हो या इंस्टा पे आपने कभी गौर किया हो, जब कभी आप किसी एक चीज़ से रिलेटेड सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं, तो कुछ देर के बाद ये जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं, चाहे वो इंस्टा है चाहे वो फेसबुक है, वो आपको उससे रिलेटेड एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं या ऐसी पोस्ट आपके सामने लाना शुरू कर देते हैं जो आपकी सर्च से रिलेटेड होती हैं. तो दिस इज अ वे कि यू कैन कोलैबोरेट विद पीपल, यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल कि जिनकी आपको तलाश है या जिस चीज़ के लिए आप किसी के साथ काम करना चाह रहे हैं. द थर्ड वन इज बिल्डिंग कम्युनिटीज. अगर इस पॉइंट को मैं आपको सिंपली समझाऊं कि बिल्डिंग कम्युनिटीज से क्या मुराद है, दैट इन अ सोसाइटी आप अपना असर रसूख बढ़ाते हैं या अपने यू कैन से अपने रिप्रेजेंटेटिव की जो तादाद है वो बढ़ाते हैं. मैं आपको बड़ी सिंपल से अगर एग्जांपल दूं इस पे, लाइक फूड पांडा इज अ कंपनी दैट डिलीवर्स फूड, लेकिन वो फूड खुद नहीं बनाते. नाउ व्हाट दे डू कनेक्ट देमसेल्फ विद डिफरेंट रेस्टोरेंट्स इन दिस सोसाइटी. वो उनके साथ मिलकर काम शुरू करते हैं एंड व्हाट दे डू,
अपने ऐप तक उनको एक्सेस देते हैं, उनको यूजेज बताते हैं कैसे करना है, एंड देन देयर इन्फॉर्मेशन, वो उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपनी वेबसाइट पर देते हैं, उसमें कुछ ऑफर्स डालते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि दैट अगर कभी भी कोई बंदा उस ऑफर को देखे तो उसको वो अट्रैक्ट करे, वो उस चीज़ को खरीदने की तरफ आए, और फिर वो जब कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करता है तो सोसाइटी में वो उस चीज़ को उसी शॉप से लेके उस बंदे तक पहुंचा देते हैं। फिर उनके पास आगे राइडर्स होते हैं दैट कैन हेल्प देम मोर, और उन राइडर्स को जब भी आप देखेंगे वो अपने एक ड्रेस में, उनका जो फॉर्मल ड्रेस होता है वो उसमें होते हैं, एंड दे शो टू पीपल के दे आर फ्रॉम अ कंपनी। सो दिस इज अ वे, एक एग्जांपल मैंने आपको दी है बिल्डिंग कम्युनिटीज की, कि ऐसे आप जब कभी भी किसी बिजनेस में जाते हैं तो सोशल मीडिया स्पेशली हेल्प्स यू टू बिल्ड कम्युनिटीज। आपको ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं कि जहाँ पर आपको किसी भी इलाके से रिलेटेड वहाँ पे लोग मिल जाते हैं। या इन सिंपली अगर मैं बात करूँ एक फर्नीचर बिजनेस के हवाले से, सो ऑन फेसबुक यू विल फाइंड सम ग्रुप्स के जहाँ पर लोग उससे रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, चीजें शेयर कर रहे होते हैं। सो दैट्स हाउ यू योरसेल्फ हैव टू क्रिएट कम्युनिटीज, यू हैव टू बिल्ड कम्युनिटीज where you can share information regarding your company, regarding your items, you can give them information time to time, आप उनको कनेक्ट रखें, आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, और यूँ आपके लिए सोसाइटी में सरवाइव करना बड़ा इजी हो जाएगा। Socializing brands and companies, this is our fourth point. Now this is somehow similar to the building communities, लेकिन यहाँ पर क्या socializing brands and companies में ये बात है कि आपकी कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करते रहें, अपने ब्रांड से मुतालिक, अपनी कंपनी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन देते रहें। फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि जो टाइम टू टाइम आपकी ऑडियंस को आपके पेज के साथ लिंक रखे। जैसे कि आपकी बुक में डिफरेंट व्हीकल्स कंपनीज की, जैसे टोयोटा की या दीगर सुजुकी की, इन डिफरेंट जो कंपनीज हैं इनकी एग्जांपल दी गई हैं कि वो कंपनीज टाइम टू टाइम अपने सोशल नेटवर्क्स के थ्रू लोगों को लिंक रखती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। उसमें ये है कि लोगों के पास जब अप टू डेट इंफॉर्मेशन आती है तो वो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं, और उनको पता चलता रहता है कि यार कौन सी कंपनी इस कंपैरेटिवली दूसरी कंपनी से इस टाइम अच्छा काम कर रही है या अच्छी चीज़ बना रही है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग टारगेट मार्केट्स। आप कैसे समझ सकते हैं अपनी टारगेट मार्केट को? आप सोशल नेटवर्क्स पर जब कभी भी कोई पोस्ट डालते हैं तो पीपल कैन रिएक्ट, पीपल कैन गिव देयर फीडबैक, दे कैन कमेंट। तो आपको वहां से पता चलेगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो उसकी क्या डिमांड है। वो कमेंट्स के थ्रू बताएगी, वो फीडबैक के थ्रू बताएगी कि उसकी क्या डिमांड है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड यू हैव टू डू समथिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स। रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज एंड बिजनेस पार्टनर्स, जैसे हमने पहले बात की थी लिंक्डइन की। सो अब जब हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने की बात करेंगे या बिजनेस पार्टनर को रिक्रूट करने की बात करेंगे तो लिंक्डइन इज वन ऑफ दोज सोशल नेटवर्क्स दैट कैन हेल्प यू टू एक्सेस एम्प्लॉयज एंड बिजनेस पार्टनर इजीली। आप आसानी से लिंक्डइन पे जाके अपनी कंपनी या अपने ब्रांड से रिलेटेड लोगों को ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन हायर देम। कनेक्टिंग विद सेल्स प्रोस्पेक्ट्स, इसमें भी अगेन से लिंक्डइन एक ऐप है दैट कैन हेल्प यू टू इजिली एक्सेस टू पीपल के जो आपकी कंपनी से रिलेटेड हो। अदरवाइज यू कैन नाउ एक्सेस थ्रू फेसबुक, यू कैन एक्सेस थ्रू इंस्टाग्राम। अगर आपके पास यू कैन थिंक कि आप थ्रू व्हाट्सएप एक अच्छा ग्रुप बना के वहाँ पर लोगों को लिंक कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। तो यू हैव टू कनेक्ट विद सेल्स प्रोस्पेक्ट्स, जितना ज्यादा आप कर सकें आप करेंगे। सपोर्टिंग कस्टमर इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट कि आपने अपने कस्टमर को सपोर्ट करना होगा थ्रू सोशल नेटवर्क्स। आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना होगी, आपको ऐसे उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लाइक अगर हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं कोई बंदा दैट ही और शी कम्स टू योर ऑफिस फॉर गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन, तो उसको टाइम लगेगा आने में, उसका पेट्रोल लगेगा गाड़ी का आने में, फिर वो वापस आएगा, फिर वो सोचेगा उसने चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी। सो थ्रू सोशल मीडिया व्हाट यू कैन डू, आपके कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसको प्रोवाइड करें।
तो उसको परेशानी से थोड़ी ईज मिल जाए, उसके लिए फैसला करना आसान हो जाए कि उसने ये चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी। लास्ट वन इज एक्सटेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना भी है। अब इससे क्या मुराद है एक्सटेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन? आप अपने थ्रू सोशल नेटवर्क्स अपना जो असर रसूख है उसको बढ़ा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने एक सोशल नेटवर्क से काम शुरू किया था, आप बाकियों की तरफ जा सकते हैं। देन यू कैन क्रिएट ऑनलाइन लैब्स, यू कैन क्रिएट ऑनलाइन स्टोर्स के जिसकी मदद से आपकी ऑडियंस के लिए चीज़ों को एक्सेस करना ईजी हो सके। स्ट्रैटेजीज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन ऑन सोशल नेटवर्क्स। अब हम देखेंगे कि हम जब बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं सोशल नेटवर्क्स पे तो हमें किस किस्म की चीज़ों को सामने रखना चाहिए। चूज द बेस्ट कंपोजिशनल मोड फॉर ईच मैसेज, पर्पस एंड नेटवर्क। पहले आपने ये डिफाइन करना है कि आपने कोई भी मैसेज जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसके लिए आप कंपोजिशनल मोड्स कौन सा रखेंगे, कि किस तरह से आप अपना मैसेज अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए और सोशल नेटवर्क आप कौन सा यूज करेंगे आपको ये भी क्लियर होना चाहिए जिसके थ्रू आप मैसेज कन्वे करेंगे। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि अब फेसबुक एक ऐप है जहां पर आप इनफॉर्मली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह कम्युनिकेशन आप लिंक्डइन पर नहीं कर सकते, तो नेचर इज डिफरेंट। तो इसलिए आपको ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। ऑफर वैल्यूएबल कंटेंट टू मेंबर्स ऑफ योर ऑनलाइन कम्युनिटीज। आपके जो ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं वहां पर जो लोग हैं आप उनको कंटेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो एक लेवल का कंटेंट होना चाहिए। वो बात करते हुए आपने लिहाज करना है कि क्या ये बात अगर मैं अपने आप से करता हूँ या कभी मैं फिजिकली किसी बंदे से करता हूँ क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं है। प्लस आपने कंपनी से रिलेटेड उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देनी है, अपडेट्स देनी है ताकि वो कंपनी के साथ या आपकी चीज़ों के साथ वो जुड़े रहें। ज्वाइन एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशंस। अगर पहले से कोई कन्वर्सेशन हो रही है आपकी कंपनी से रिलेटेड या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप उसको ज्वाइन करें, आंसर करें लोगों के क्वेश्चंस को। किसी को कोई मसला है तो ट्राई टू हेल्प देम, उनकी मदद करें। इससे क्या होगा कि दे विल फील रिलीफ के समवन हैज कम एंड उनकी मदद कर दी है। तो ज्वाइन करें ऐसी कन्वर्सेशंस जहां पर भी आपको मिले। एंकर योर ऑनलाइन प्रेजेंस इन योर हब। आप ऑनलाइन अगर किसी भी किस्म की कोई डिस्कशन चल रही है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी कंपनी से रिलेटेड, तो ट्राई टू एंकर योर प्रेजेंस इन योर हब। खुद बताने की कोशिश करें, एंकर करने की कोशिश करें लोगों के साथ बातचीत में। उनको बताएं कि व्हाट इज द इशू, कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ब्लॉग है, कोई वेबसाइट है जिसको आप रन करते हैं, उसको खुद एंकर करें। टाइम टू टाइम चीज़ों को खुद देखें, कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। खुद चीज़ों को चेक करते रहें ताकि आपकी ऑडियंस का जो एक एतमाद है वो भी रहे, आपकी क्रेडिबिलिटी भी उनकी नज़र में बनी रहे। फैसिलिटेट कम्युनिटी बिल्डिंग। अपनी ऑडियंस को ये फैसिलिटेशन दें कि उनके लिए आपको एक्सेस करना आसान हो। रिस्ट्रिक्ट कन्वेंशनल प्रोमोशनल एफर्ट्स टू द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। आप अपनी जिस किस्म की भी आपकी कन्वेंशनल प्रोमोशनल एफर्ट्स हैं उनको राइट टाइम और राइट प्लेस पे करें। कहाँ पर आपने फ्लैक्स लगानी है, किस वक्त फ्लैक्स लगानी है, ये आप सोचें। इसी तरह मोर कन्वेंशनल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक होता है कि पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन का होता है सीन, या आप छोटे छोटे कार्ड्स बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने देखना है कि आपको कब ये लोगों को देने हैं और किस किस इलाके में देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब आप पिज़्ज़ा शीज़ा बेचने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप जाके झुग्गियों में वो उसके कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, तो इस समथिंग के लोगों को अजीब सा लगेगा। तो ये आपने डिसाइड करना है। एंड द लास्ट वन इज मेंटेन अ कंसिस्टेंट पर्सनालिटी। हर नेटवर्क में एक आपको अलग तरह से बिहेव करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बात की थी, फेसबुक इंस्टा पे आप जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं वैसे आप जीमेल पे, वैसे आप लिंक्डइन पे जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी देखना है कि कहाँ पर आपने फॉर्मल रह के बात करनी है, कहाँ पर आपने इनफॉर्मल होकर बात करनी है। तो दीज आर दी स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प यू फॉर योर बिजनेस कम्युनिकेशन ऑन सोशल नेटवर्क्स। थैंक यू सो मच।